Hello everyone, this is Varun Goyal with the YouTube channel Way to Varun, and you can see Way to Maths also. So today we will continue here our video with exercise 6.2 question number 2. Statement is in front of you all and you can see this statement as well as in your NCERT book also. So this video is based on the NCERT exercise 6.2. Chapter name is lines and angles. So students, before starting this video, let me explain you what this diagram tells us. हाँ जी देखो, here AB line is parallel to CD, whatever is given in the question, and EF is a perpendicular. EF is a perpendicular line on CD. GED angle is equal to 126 degree. We have to find angle H, angle GEF, angle FGE. So let us start to find this angle. GED angle is given to us 126 degree. देखो राजी, GED angle. What is that angle of GED? You can see here this angle is known as GED. This angle is GED and this will be 126. एक चीज़ इत्थों ही क्लीयर हो जाती है भी आह छोटा हिस्सा 90 है, पूरा हिस्सा अपने को 126 है, तो जो रिमेनिंग पार्ट है आह वाला जिथे मैं लाइन लगाई है रिमेनिंग पार्ट ये कितना होएगा. सो आप लिखांगे इत्थे एंगल GEF इज इक्वल टू वट. कंप्लीट एंगल किहड़ा अपने को GED ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਸਮਾਲ ਐਂਗਲ ਆ FED, ਮਤਲਬ ਜੋ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ FED. ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਵਿਲ ਹੈਵ ਹੀਅਰ 126 ਡਿਗਰੀ ਮਾਈਨਸ 90 ਡਿਗਰੀ. ਸੋ ਆਰ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਵਟ? it will be a 36 degree. So we can write it angle GEF is 30 degree. This angle is finded by us. Afterwards we have to find AGE, this angle. Students, you can see the diagram here. This is a line, this is a line, this is a line. These three are lines. ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ if two lines are parallel to each other, ਜੇ ਦੋ lines ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ parallel ਨੇ, as I told you in my previous video, if two lines are parallel to each other, ਦੋ lines ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਜੇ parallel ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਟਰਾਂਸਵਰਸਲ ਰਾਹੀਂ ਜੇ ਉਹ ਕੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲਟਰਨੇਟ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲਸ ਆਰ ਇਕੁਅਲ. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਐਂਗਲ AGE ਜੋ ਆ ਉੱਪਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਐਂਗਲ GED ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਇਕੁਅਲ. ਤੇ ਐਂਗਲ GED ਦੀ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 126. this must implies angle AGE is also equals to 126 degree. So here this angle is also to be found. Afterwards what we have to find? We have to find FGE. This one is a F, this one is G and this one is E. That means we have to find only this angle little bit. So as you can see AB is a line. So what I am going to write here, AB is a line. AB एक line आ ते line दे ऊपर बनने वाले angles हमेशा लीनियर पेयर बनाते हैं. सो मैं इत्थे लिखूंगा एंगल AGE प्लस एंगल FGE. FGE इज इक्वल टू 180 डिग्री. AB लाइन आ, इन्हों का सम 180 होगा. इत्थे तुसीं लिखना है ब्रैकेट च रीजन होर लिख सकते हो लीनियर पेयर. वैसे आ उपरली लाइन इनफ आ. सो इन्ना लिखण तो बाद हुण तुसीं इत्थे की लिखना वा? इन्हां दोनों का सम 180 है. हुण एंगल एज वो मैं फाइंड किया सी, वो कितना आया सी मेरा? हाँ जी, यू आर राइट हेयर 126 प्लस एंगल FGE ये आप फाइंड करना वा. इक्वल कि रखांगे आप इहनूं 180 दी. तो एंगल FGE इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री. इन्हां दोनों नूं करो माइनस. वट विल यू हैव हेयर? यू हैव हेयर आंसर इज 54 डिग्री. सो दिस विल बी द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन. Here your question number 2 is completed. Now let us see the statement of question number 4. Well students, the diagram of next question is front of you all. I hope so this diagram is clear to you. You can see your diagram in the NCERT book also. So what is the diagram? PQRST ये lines ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ. स्टेटमेंट 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵਾ ਵੀ PQ जो है ST ਦੇ पैरेलल ਆ. ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 110 ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 130 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ. फाइंड करना ਆਪਾਂ विच वाला एंगल. सो राजी ये विच वाला एंगल फाइंड करने इस क्वेश्चन च ना थोड़ा जिहा ट्रिक आ. देखो इत्थे किते Z नहीं बन रहा. जिवें इत्थे लीनियर पेयर वगैरह की प्रॉपर्टी लगाती, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगानी होवे तां आपां नूं Z बनाना पैना. Z बनाने के लिए मैं की कीता, मैं इत्थों एक लाइन कंस्ट्रक्ट की अपने कोलों. जिहड़ी भी सैल्फ कंस्ट्रक्शन आपां करांगे राजी वो डॉटेड होनी चाहिए. ये लाइन का मैं नाम रखिया RN. ठीक है जी. तो RN इस लाइन का नाम रखता. हुण देखो राजी इत्थे मैं लिखूंगा ड्रॉ अ लाइन ST
पैरलर टू आर एन। एस टी लाइन ड्रॉ करनी है जी आर एन की की आ पैरलर आ। जे एस टी लाइन आर एन दे पैरलर आ इट मीनस ते एस आर एंड एस आर ट्रांसवर्सल। दिस इंप्लाइज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का सम कितना होंगे, जो मतलब आह वाला एंगल हो गया इन्ना क ते आह वाला एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का सम कितना होंगे 180 डिग्री। तो एंगल किहड़े बनते पे, दिस इंप्लाइज एंगल टी एस आर प्लस एंगल एस आर एन इज इक्वल टू 180। टी एस आर की वैल्यू गिवन है 130 डिग्री प्लस एंगल एस आर एन इत्थे लिख लांगे इक्वल कि आ जाएगा अपने को 180। तो एंगल एस आर एन की जो वैल्यू है वो 180 माइनस 130 इट विल बी 50 डिग्री। सो इतों अपने को जो छोटा जहा हिस्सा एंगल का है कितना आ गया 50 डिग्री। उस तो बाद राजी आपां नूं गिवन की पी क्यू इज़ पैरलर टू एस टी एंड एस टी जी हैगी वो पैरलर है अपने को आर एन की। दिस इंप्लाइज जी पी क्यू है वो भी पैरलर कि होगी आर एन की। तो जे पी क्यू तो आर एन पैरलर ने तो क्यू है आर नूं मैं ट्रांसवर्सल मन ला तो मेरे को की रिजल्ट आऊगा वो देखते हैं नैक्सट पेज पर। हाँ जी बेटा इन द ऑन द नैक्सट पेज हूँ आप देखते हैं भी अपने को जो रिजल्ट है वो रिजल्ट अपने को की आएगा। देखो इतने आप क्या वा भी जी पी क्यू लाइन है हूँ आप कह रहे हैं भी वो पैरलर है आर एन लाइन की। यदा मतलब वो एक Z बना रहे हैं, ध्यान नाल देखो आ पी क्यू लाइन है, आह अपने को ट्रांसवर्सल है तो ये वाली लाइन अपने को आर एन है। तो यही वाला एंगल ये वाले एंगल के इक्वल होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो दिस इंप्लाइज कि मैं इतने लिख सकता वा भी एंगल पी क्यू आर मस्ट बी इक्वल्स टू एंगल क्यू आर एन इज इक्वल टू कितना है 110 डिग्री। डायग्राम तुसी अपनी बुक च देखो नैक्सट पेज से जो आप डायग्राम बनाई सी ਇਹਦਾ मतलब ये हो गया क्यू आर एन का भी आ जो कंप्लीट एंगल है ना पूरा ये कितना हो गया अपने को 110 डिग्री हो गया। बट यह पार्ट 110 डिग्री आ छोटा पार्ट कितना वा 50। तो बाकी पार्ट कितना होएगा था ऑबवियसली गल है भी 60 होएगा। क्यों क्योंकि 60 प्लस 50 करांगे तो ही कंप्लीट एंगल कितना बनेगा 150। सो आप इतने डायरैक्टली रिजल्ट की लिखांगे इन द नैक्सट पेज आप इतने रिजल्ट लिखांगे दिस इंप्लाइज एंगल जो आप फाइंड करना है क्यू आर एस वो किदे इक्वल आएगा क्यू आर एन एंगल क्यू आर एन कंप्लीट एंगल माइनस जो एंगल आप फाइंड किया एस आर एन मतलब 110 डिग्री माइनस 50 डिग्री इट विल बी अ 60 डिग्री। सो हेयर योर दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो completed. I hope so you enjoy this question also. Afterwards students we will do the last question of this exercise, that is question number 5. Before that let us see the statement of that question. See the statement of question number 5. Statement is in front of you all. Students, you can see in the statement in the figure given that AB line is parallel to CD. This above line is known as AB and this line is known as CD line. Afterwards these angles are given to us. Find the value of x and y. It is a too easy question according to me, nothing else. कुछ है नहीं खास इस क्वेश्चन करने वाला, बहुत ईजी क्वेश्चन है। सो हुण राजी करना की है क्वेश्चन देखो ए बी लाइन सी डी के पैरलर आ। तुसीं डायग्राम इत्थों समझो मैं की कर रहा इत्थे एक पी पॉइंट चूज कर रहे हैं, ठीक है। जो डायग्राम मैंने गिवन है इत्थे कोई क्यू पॉइंट है, इत्थे आर पॉइंट है। तुसीं देखो ए पी एक ए पी लाइन नूं देखो ए पी इस मैं लिख सकता इत्थे भी ए पी इज़ पैरलर टू आर डी एंड पी आर इज़ ट्रांसवर्सल। पी आर इज़ अ ट्रांसवर्सल। सो इत्थों अपने को रिजल्ट की आया ये Z बन रही है, ध्यान नाल देखो ए तो पी जाओ, पी तो तुसी जाओ आर तक तो आर तो जाओ तुसी डी तक, ठीक है जी। तो यदा मतलब जो आह एंगल बन रहा वा वो ये इक्वल होगा। हुण ए वाला एंगल तो 127 गिवन है, आ जो एंगल है ना ये अगे दो पार्ट्स से ब्रेक हो रहा है। इतने पी पॉइंट है, इतने क्यू है, कितने ये एंगल एक 50 है तो एक कितना वा वाई। सो राजी इनू आप हुण किवें ब्रेक कर सकते हैं 50 के वाई आप दोनों ऐड करांगे। तो आप इत्थे लिखांगे एंगल ए पी क्यू मतलब जो 50 डिग्री एंगल अपना ए पी क्यू प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर डी। सो इत्थे ए पी क्यू की वैल्यू मैं 50 भरती, इत्थे मैं वाई लिख लिया तो इत्थे मैं लिख रहा मैं 127 डिग्री। वाई इज इक्वल्स टू 127 डिग्री माइनस 50। तो इन्होंने दोनों को जो तुम सबट्रैक्ट करोगे, सबट्रैक्ट करने तो बाद वट यू विल हैव एयर 77। सो ये आ गया थोड़ा वाई का आंसर। हुण तुसीं फाइंड करनी है एक्स। एक्स किवें फाइंड करनी है देखो राजी आह एंगल जी लाइन है क्यू डी इज़ अ लाइन, क्यू डी इज़ अ लाइन, क्यू डी एक लाइन है।
ਲਾਈਨ ਤੇ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਐਂਗਲਸ ਦਾ ਸਮ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 180। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਐਂਗਲ PRD प्लस एंगल PRQ जो कि आप फाइंड करना है। ये 180 आएगा LP लीनियर पेयर। PRD एंगल जो है वो 127 दिता होया प्लस PRQ आप फाइंड करना वा इक्वल कीजिए लिख लिया आप 180 डिग्री। तो एंगल PRQ कितना आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 127 डिग्री। तो कितना आ गया 180 डिग्री चो जो तुम 127 नू माइनस करोगे वट यू विल हैव हेयर कितना आएगा थोड़े को इट विल बी 53 डिग्री। सो दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन 53। हुण देखो एक अंदर ट्रैंगल है PQR आप छोटिया क्लासिस 7th 8th प्रॉपर्टी पढ़ के आए हैं सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राईएंगल इज 180 डिग्री। तो उस प्रॉपर्टी के अंदर आप लिखांगे एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल टू 180 डिग्री। हुण आपां नूं पता है भी एंगल P यानी कि Y उहदी वैल्यू 77 है एंगल Q वो X आ एंगल R 53 है इक्वल की अपने को 180। तो एंगल X की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने को आई एम जस्ट गोइंग टू राइट हेयर डायरैक्टली दैट इज़ 50 डिग्री। इन्होंने दोनों को प्लस करो जिन्ना आंसर आ गया 180 चो माइनस कर दो यू विल गेट हेयर X इज इक्वल्स टू 50 डिग्री। सो हेयर योर क्वेश्चन नंबर 5 एज वेल एज दिस एक्सरसाइज इज टू बी completed. Let us see the next one. So let us start with question number 1 of exercise 6.3. Welcome students with this exercise. This is Way to Varun, my Insta, and Way to Maths is my YouTube account. You can follow both the accounts for the more information regarding the mathematics and all other things. After this, let us see this question. Students ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ क्वेश्चन ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ फाइंड करना है PRQ that means we have to find this angle। ट्राईएंगल ਦੇ इंटीरियर एंगल ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ फाइंड करना है। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੈਰਲਲ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਆਹ ਲਾਈਨ ਇਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗੂਲਰ ਲਾ ਜਾਂ ਲੀਨੀਅਰ ਵੇਅਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ QS ਇਜ਼ ਅ ਲਾਈਨ QS ਇਜ਼ ਅ ਲਾਈਨ ਤਾਂ QS ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆ ਦੋਨੋਂ ਐਂਗਲਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 180। मतलब ਕੀ ਹੈ ਐਂਗਲ SPR ਆਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ प्लस एंगल RPQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। RPQ तो आप फाइंड करना वा इट मीनस इन्हों उदे रखांगे तो यदी वैल्यू हैगी 135 डिग्री प्लस एंगल RPQ इक्वल कि आएगा अपने को इतने 180 डिग्री। दिस इंप्लाइज एंगल RPQ इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री सो दैट इट्स आंसर इज वट इसका आंसर कितना आ जाएगा इट विल बी 45 डिग्री। सो ये एंगल अपने को आ गया 45। सिमिलरली TR इज अ लाइन TR इज अ लाइन जे TR एक लाइन आ इसका मतलब की आ एंगल PQT प्लस एंगल PQR ये भी कि इक्वल होंगे 180 मतलब आह दोनों एंगल्स आउटर तो इंटीरियर एंगल ये दोनों किन्ने होंगे 180 डिग्री। PQT एंगल जो है वो 110 डिग्री दिता हुआ है प्लस आ वाला एंगल आप एंगल Q जो इंटीरियर है वो फाइंड करना इक्वल की 180। तो एंगल Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी इतों क्लीयर कट 70 डिग्री। हुण अपने को ट्रायंगल के दो अंदरले एंगल आ चुके हैं तीसरा फाइंड करना तो बाई एंगल सम प्रॉपर्टी बाई एंगल सम प्रॉपर्टी की रिजल्ट आएगा अपने को एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल टू 180 डिग्री। P की वैल्यू आप फाइंड की 45 प्लस Q की वैल्यू है 70 डिग्री प्लस R आप फाइंड करना इक्वल टू 180 45 प्लस 70 इट विल बी 115 डिग्री प्लस एंगल R इक्वल टू 180 एंगल R की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने को 180 डिग्री माइनस 115 डिग्री। तो उन्होंने जो माइनस करांगे यू विल गेट हेयर द आंसर 65 डिग्री। आई होप सो दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू ऑल। सो हेयर आर क्वेश्चन नंबर 1 इज कंप्लीटेड। आफ्टरवर्ड्स लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 2। वेल स्टूडेंट्स डायग्राम इज इन फ्रंट ऑफ यू ऑल। डायग्राम थोड़े सारे दे सामने आ आपां नूं एक एंगल YXZ दिता होया वा 62 डिग्री एक XYZ एंगल दिता 54। उन्हें ये गल कही है आपां नूं OY ते OZ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਦੋ ਲਾਈਨਸ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ एंगल Y ਨੂੰ ਤੇ एंगल Z ਨੂੰ ਬਾਈਸੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ठीक है जी
ये चीज़ां आपां नूं गिवन नहीं। सब तो पहला काम की है, आप Z एंगल फाइंड कर लेंगे। तो Z एंगल अपने कोल कितना आएगा, देखो राजी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना हुंदा है 180। तो आप इत्थे लिखांगे 62 डिग्री जो 62 वाला एंगल सी प्लस 54 डिग्री प्लस एंगल Z इक्वल टू किहदे आऊगा 180, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स ने। तो उस तो बाद अपने को एंगल Z कितना आ जाएगा 64 डिग्री। इन्होंने दोनों को प्लस करोगे, जिन्ना आंसर आ गया 180 चो माइनस करोगे तो 64 आएगा Z। हुण एंगल OY ते OZ ये लाइनस ने एंगल Y ते Z नूं की करदियां ने बाईसैक्ट करदियां ने, मतलब आ भी एंगल जिन्ना उन्ना ही यही है, मतलब पूरे एंगल नूं दो इक्वल पार्ट्स से डिवाइड करदियां ने। तो इत्थे भी 27 रह गया तो नीचे भी कितना आएगा 27। सिमिलरली इत्थे भी 64 है, इट मीनस इत्थे भी 32 आएगा तो नीचे भी कितना आएगा 32 डिग्री। सो इन्ना काम अपना कंप्लीट हो गया। हुण आपां जो एंगल फाइंड करना है वो हैगा OZY आ फाइंड करना सी। तो ये तो अपने को कितना आ गया 32 डिग्री। आप लिखांगे इत्थे क्लीयरली एंगल OZY इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल Z इज इक्वल टू 32 डिग्री। ठीक है जी, ये हो गया अपना काम इत्थे तक। उस तो बाद आप जो एंगल फाइंड करना वो हैगा एंगल YOZ, Y फिर O फिर Z। छोटी ट्रायंगल दे विचों आपां आ वाला एंगल की करना है फाइंड। जी छोटी ट्रायंगल आ तो दो एंगल्स आपां नूं पता ही नहीं, तीसरा एंगल आपां नूं नहीं पता, तो आपां की करांगे आपां लिखांगे 27 डिग्री प्लस 32 डिग्री प्लस जिहड़ा एंगल फाइंड करना है वो हैगा YOZ इक्वल किहदे होऊगा ये भी 180। इन्हां दोनों नूं प्लस करियो, प्लस करके इन्हां दोनों नूं कितना आएगा अपने कोले, हाँ जी 27 प्लस 32 वट वी विल हैव हेयर। इत्थों आप लिखांगे एंगल YOZ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 27 डिग्री माइनस 32 डिग्री। तो इन्हें सारे माइनस करके जो आंसर अपने को आएगा वो आएगा 121 डिग्री। सो दिस एंगल इज ऑफ 121 डिग्री। सो हेयर यूर दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 3 इज योर होमवर्क क्वेश्चन, वो तुम खुद ट्राई करोगे क्वेश्चन नंबर 3। आफ्टरवर्ड्स लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 4 एंड इट्स अ स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं तो उसकी स्टेटमेंट देखते हैं। You can see here question number 4 and its statement. In the given figure, PQ and RS intersect at point T such that angles are given to us 40, 95 and 75. Find angle SQT. We have to find angle SQT, that means SQ and T. This angle we are going to find. राजी बहुत सिंपल क्वेश्चन आ। पहला तुसी आह उपरली ट्रायंगल देखो, ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋ एंगल्स गिवन आ, तीसरा एंगल ਆਪਾਂ फाइंड कर सकते हैं बाय लीनियर पेयर प्रॉपर्टी। तो आप की लिखांगे इत्थे एंगल केड़ा फाइंड करना आप लिखांगे PTR प्लस 95 प्लस 40 डिग्री किदे इक्वल आएगा 180। ठीक है जी, इसका रीजन की है बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी के थ्रू अपने को ये रिजल्ट आ जाएगा। तो उस तो बाद एंगल PTR कितना आएगा 180 डिग्री माइनस 90 प्लस 40 होंगे 130, 135 माइनस करांगे इतों आप वी विल हैव हेयर 45। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 45 डिग्री का एंगल अपने को आ चुके। हुण यही एंगल क्यों फाइंड किया, क्योंकि मैनू पता वा भी आह जिहड़ा एंगल है यही एंगल दे की आ रहा वा वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो आप एंगल लिखांगे इत्थे एंगल PTR इज इक्वल टू एंगल QTS इज इक्वल टू 45 डिग्री। इसका रीजन लिखांगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो ये भी कितना आ गया 45 डिग्री आ गया। ठीक है जी, सारा कुछ फाइंड हो गया। हुण आप जो मेन फाइंड करना आ वाला, हुण तुसीं नीचे वाली ट्रायंगल कंसीडर करोगे QST। हुण लिखोगे इन ट्रायंगल QST तिना एंगल सम कितना होना चाहिए 180। 45 डिग्री प्लस 75 डिग्री प्लस एंगल Q इक्वल कि होना चाहिए है 180 की। तो उत्थों अपने को जो एंगल Q है SQT कह लो या कला Q कह लो, वो वैल्यू जो वो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी। दिस इंप्लाइज एंगल SQT इज इक्वल टू 60 डिग्री। इस एंगल में मैं आ वाली फॉर्म च लिखा वा ट्रायंगल की फॉर्म च भी आ एंगल अपने को बन रहा, कला Q भी लिख सकते हो आ भी लिख सकते हो। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 4। Afterwards students we are having question number 5. So let us see the statement of question number 5. So students, diagram is in front of you all. This one is the last question of this chapter. As you all knew that after this chapter is to be over.
ਸੋ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਆਪਾਂ ਐਂਗਲਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੇ ਆ। ਪੀ ਕਿਊ ਲਾਈਨ ਇਜ਼ ਪੈਰਲਲ ਟੂ ਐਸ ਆਰ। ਜੋ ਆ ਪੀ ਕਿਊ ਲਾਈਨ ਆ ਇਹ ਪੈਰਲਲ ਆ ਐਸ ਆਰ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਇੱਧਰ ਆਵਾਂਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਇੱਧਰ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਇੱਧਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ੈਡ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਐਕਸ ਆ ਪਲੱਸ 28 ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਏਗਾ 65 ਦੇ। ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਆ ਅਲਟਰਨੇਟ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ 65 ਡਿਗਰੀ ਮਾਈਨਸ 28 ਡਿਗਰੀ। 65 ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ 28 ਮਾਈਨਸ ਕਰੋਗੇ ਯੂ ਵਿਲ ਹੈਵ ਏਅਰ 37, ਤਾਂ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਐਕਸ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 37। ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਅਲਟਰਨੇਟ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਕਿਉਂ ਲਗਾਇਆ ਵਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਪੀ ਕਿਊ ਆ ਉਹ ਪੈਰਲਲ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਸ ਆਰ ਲਾਈਨ ਦੀ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਹੇਅਰ। ਆਫਟਰਵਰਡਸ ਉੱਪਰਲੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਐਂਗਲ 90 ਆ, ਇੱਕ ਐਂਗਲ 37 ਹੈ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਵਾਈ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਦੇਖੋ, in triangle PQS, in triangle PQS 90 डिग्री 37 डिग्री प्लस y किधे इक्वल आएगा 180। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी के थ्रू तो y की वैल्यू जो है वो अपने को एग्जैक्टली कितनी आ जाएगी y की वैल्यू, इट विल बी अ 53 degree. So here your this question is also completed as well as this chapter is completed. No extra question is needed to do after these questions. So here your this chapter is completed. Now in the next video let us start our new chapter, chapter number 7.